Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, all of you are fine by the grace of Allah. Due to your first assessment, your online classes had stopped. Due to this adversity and pandemic situation, we want to save your academic session. In this regard, school has decided to restart online classes. Let's start the class now. We are going to start our new chapter of computer studies. The name of the chapter is Storage Devices. My dear students, to avoid the spread of this pandemic coronavirus, have to follow the instructions. Avoid crowded places, wear a mask, stay at home, wash foodstuff, don't handshake, cough etiquette, wear gloves outside, disinfect your personal things, don't touch your face, mouth, eyes and nose. Wash your hands frequently. Disinfect your hands. Keep distancing. Dear students, prevention is better than cure for coronavirus. All of you know the process of online classes. Let's start the class. Storage devices. When the information is being processed in a computer, it is temporarily held in the main memory of the system. If we want to hold the information for future use, we have to save it permanently. It is called as saving or storing information on some backing storage. It is a non-volatile memory. Storage medium is classified into three types, namely magnetic disk, magnetic tape, optical disk. Number 1, hard disk, floppy disk, optical disk, Blu-ray disk, USBs, magnetic tape. Different devices use different type of storage media to save their specific task. अगर हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन या डाटा जो हम कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं वो कुछ देर के लिए होता है, टेम्परेरी होता है हमारी मेन मेमोरी के हिसाब से। लेकिन अगर हम इस स्टोरेज डाटा को अपनी मेमोरी में सेव करना चाहें या अपने सिस्टम में सेव करना चाहें तो उसके लिए हमें कुछ स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी काउंट होती है, यानी हम उसको अपने यूज़ के लिए सेव करके रख सकते हैं लेकिन हम उसको इजीली इरेज भी कर सकते हैं जब उसकी हमें ज़रूरत ना हो। स्टोरेज मीडिया को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मैग्नेटिक डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया। इसमें हार्ड डिस्क आ गया, फ्लॉपी डिस्क आ गया, ऑप्टिकल डिस्क आ गया, ब्लू-रे डिस्क आ गया, यूएसबीस आ गई, मैग्नेटिक टेप आ गया। डिफरेंट डिवाइसेस को हम डिफरेंट स्टोरेज मीडिया के तौर पर यूज करते हैं। हर डिवाइस को हर उसमें यूज नहीं किया जा सकता। मैग्नेटिक डिस्क, सबसे पहले हम मैग्नेटिक डिस्क की बात करते हैं। The data in the magnetic disk is recorded onto a rotating magnetic surface. The disk spins around very fast and takes only a fraction of a second to trace data onto the disk. Two common types of magnetic disk are hard disk and floppy disk. ये एक तरह की प्लास्टिक और मेटेलिक सरफेस होती है जिसकी सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमारी इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करती है या कैच करती है और ये डिस्क बहुत तेजी के साथ अपनी फास्ट स्पीड के जरिए चारों तरफ घूम रही होती है और इसको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमें बैकअप भी मिल जाता है
और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम इस पे कोई चीज इरेज भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें टू टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क है, एक आ जाती है हार्ड डिस्क और दूसरी होती है पोर्टेबल शॉर्टेज storage device. For hard disk is a type of magnetic disk which helps user to store large amount of data. It is attached with PC and laptop. Hard disk is of different storage capacity which is calculated in gigabyte और terabyte. सबसे पहले हमारी जो हार्ड डिस्क होती है, जो हमारे नॉर्मली कंप्यूटर और लैपटॉप में पाई जाती है, उस पर हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेव करते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का पूरा प्रोसेस या पूरा जो सिस्टम है वो हमने उस हार्ड डिस्क पर सेव किया हुआ होता है और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो गीगाबाइट और टेराबाइट में मेजर की जाती है। एज पर स्टोरेज कैपेसिटी हम वो यूनिट यूज करते हैं। फिर उसके बाद पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस यानी पीएसडी की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली ये एक चिप कार्ड है जिसको हम मेमोरी कार्ड भी कहते हैं। नॉर्मली ये हम अपने स्मार्टफोन्स वगैरह में यूज करते हैं और इसका मेनली यूज जो है वो फोटोशॉप में वगैरह में होता है, जिसके जरिए हम अपनी पिक्चर्स या फोटोज को स्टोर करके रखते हैं, जिसके जरिए जिस वक्त हमें कंप्यूटर अवेलेबल ना हो तो हम इजीली अपना डाटा डाउनलोड कर सकें, बैकअप ले सकें उसका या उसको इरेज कर सकें। ये भी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ऑप्टिकल डिस्क आर ऑफ टू टाइप, सीडीज, compact disc and DVDs, digital versatile disc. These discs hold limited amount of data which are operated by CD and DVD-ROM. Inside CD and DVD-ROM, an optical laser is fitted to read the data saved in these discs. We can save any type of data depending on the storage capacity. As in CD, it holds 700 megabytes approximately of space, and in DVD, it holds 4.7 gigabytes approximately of space for single side disk and 8.5 gigabytes for a dual layered single side disk. Both CD and DVD use red laser frequency to read and write the data. There are two type of compact disc. इसमें आपके पास जो होता है ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल डिस्क। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज मीडियम के तौर पर यूज करते हैं। इसमें बहुत लो पावर लेजर बीम यूज होती है जो रेड कलर की होती है, उसके जरिए रीड और राइट किया जाता है। ओरिजिनली ये डाटा को अपने अंदर स्टोर करती है और इस रेड लाइट और लाइट के थ्रू रीड एंड राइट होता है इस डिस्क पर, और उसके बाद जो है वो उस आउटपुट के उसमें हमें उसका ऑडियो और विजुअल सुनाई देता है। इसमें हम किसी भी किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं, बस वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो डाटा कितना बड़ा या कितनी बड़ा उसका टाइम पीरियड है। तो इसकी नॉर्मली कैपेसिटी जो है वो, अगर हम सीडीज की बात करते हैं तो वो 700 मेगाबाइट है और अगर हम डीवीडी की बात करते हैं तो 4.7 गीगाबाइट है। इसके जरिए हम आसानी कोई भी ऑडियो और विजुअल देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके बाद ब्लू रे डिस्क की बात आती है। Blu-ray disc is a digital optical disc data storage format. It was designed to supersede the DVD format and is capable of storing several hours of video in high definition and ultra high definition resolution. It uses blue laser frequency to read and write.
अगर हम ब्लू रे डिस्क की बात करते हैं तो ये भी स्टोरेज डिवाइस है। इसको डीवीडी डिवाइस को मजीद सुपरसीड कर दिया है, यानी उसको मजीद आगे बढ़ा दिया है। उसमें हम सेवरल आवर्स यानी कई घंटों की कोई भी ऑडियो और वीडियो टेप कर सकते हैं और उसको ब्लू लेजर लाइट के थ्रू रीड और राइट किया जाता है। ये इसकी कैपेसिटी एज कंपेयर टू डीवीडी thousands times ज्यादा है। Optical discs are of two types: CDs, compact disc, and DVDs, digital versatile disc. These devices hold limited amount of data which are operated by CD and DVD-ROM. Inside CD and DVD-ROM, an optical laser is fitted to read the data saved in these disks. We can save any type of data depending on the storage capacity. As in CD, it holds 700 megabytes of space, and in DVD, it holds 4.7 gigabyte of space for single-side disk and 8.5 gigabyte for a dual-layered single-side disk. Both CD and DVD use red laser frequency to read and write the data. There are two types of compact discs: CD R read-only memory, CD RW rewritable memory. अगर हम ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डेटा स्टोरेज मीडियम है जिसके जरिए हम एक लार्ज अमाउंट का डेटा ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें ये डेटा डॉट्स की शक्ल में सेव होता है और उसको रेड लेजर लाइट की मदद से, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम होती है, रीड और राइट किया जाता है। इस डेटा के बाद जब हम वो डॉट रेड लाइट के जरिए रीड होते हैं और उसका आउटपुट हमें ऑडियो और विजुअल की शक्ल में नजर आता है। इस डिस्क पर हम किसी भी किस्म का डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसमें आपके सॉन्ग्स हो गए, वीडियोस हो गई, पिक्चर्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसमें दो तरह की सीडीज होती हैं। एक में सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, यानी वो एक दफा रिकॉर्ड होने के बाद दोबारा इरेज नहीं होती, और एक होती हैं जो रीराइटेबल होती हैं, यानी उनको हम बार बार इरेज करके यूज कर सकते हैं। ब्लू-रे और ब्लू-रे डिस्क इज अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क data storage format. It was designed to supersede the DVD format and is capable of storing several hours of video in high definition and ultra high definition resolution. It uses blue laser frequency to read and write. ब्लू-रे डिस्क की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज मीडियम है। इसको हम ये कह सकते हैं कि डीवीडी की सुपरसीरियस या मॉडर्नाइज फॉर्म है, जो मजीद मॉडर्नाइज कर दी गई है। डीवीडी को मजीद मॉडर्नाइज कर दिया है। इसमें टाइम पीरियड ज्यादा है, इसमें कैपेसिटी ज्यादा है, इसमें हम कई घंटों की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इजीली उसको किसी भी हाई अल्ट्रा डेफिनेशन पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और ये ब्लू लेजर लाइट की फ्रीक्वेंसी की मदद से रीड और राइट की जाती है। USB Universal Serial Bus Flash Drive. It was launched in year 2000 with the storage capacity of 8 megabytes. USB is now available in capacity ranging between 8 gigabyte to 1 terabyte, and further levels are expected to reach 2 terabytes. It is a type of pick and carry storage device. ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। इसकी मदद से हम किसी भी किस्म का डाटा आसानी से लेके अपने साथ फिर सकते हैं। उसको हम किसी भी जगह यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट रेंजिंग में पाई जाती है। नॉर्मली ये जो है वो 8 मेगाबाइट की
होती है, लेकिन अब 8 मेगाबाइट से लेकर 1 टेराबाइट तक अवेलेबल है और बहुत जल्द तवक्को कर रहे हैं कि इसका 2 टेराबाइट भी आने वाला है। तो नॉर्मली हम स्टोरेज मीडियम के तौर पर यूज करते हैं। मैग्नेटिक टेप। Magnetic tape is a medium for magnetic recording made of a thin magnetizable coating on a long narrow strip of plastic film. It was developed in Germany in 1928 based on magnetic wire recording. Never place the tape near magnet, otherwise the data will be lost. It is the most economical media of storage. Magnetic tape is now mostly used for backing up of data. अब अगर हम मैग्नेटिक टेप की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पुराना मेथड है किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने का। नॉर्मली ये एक प्लास्टिक की थिन स्ट्रिप रिबन टाइप की होती है। इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है जिस पर हम अपना डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड करते हैं और उसको किसी वक्त भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी स्लो स्पीड की वजह से सिर्फ बैकअप के लिए यूज होती है। और इसका सबसे मेन या सबसे ड्रॉबैक ये है कि अगर हम इसको मैग्नेट के करीब रख देंगे तो इस फिल्म पर पाई जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड डैमेज हो जाएगी और हमारा डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा।